So I think this image you have clicked from your balcony, right? Yes, yes. Okay. So No, just to early morning when the light, just sun was coming at that time. okay. Just to give you, this is inside the house. Okay. Uh, I do learn Veda. So for that ambience I have created. Okay. Right, sir. But when you are clicking, so that time the lens autofocus was on or off? That is, a AF and M is there on the This lens. was in autofocus only. Okay, so because But I know some clarity is not there. right, I think maybe the focus is not getting detected properly in that, and ISO is too much high. So that's the reason these particular grains which you are able to see over here. So the entire Yeah. image is getting with some kind of noise that we discussed in the last lecture. Correct. So just we will I check. had to learn. Since something is there, I'm clicking. Definitely, sir. Definitely, that practice always will make you perfect. And that day you discussed with that color theory. So I also researched in the same, and your conclusion was exactly correct. Like when the lights gets uh, directed towards the earth, so that time due to that water droplets, the color reflection gets varied. So like Okay, anyhow, I have given you solid information on that Word exactly document, which right, is sir. useful for you for future. Definitely. Various things. It is a collection only, so that it will be useful for you also, and it will be useful for me too. Definitely, sir. I'm just opening that only. Yeah, yeah. No, we are not really learning the how to use color in photography. This is basics of color, light, not even color. Yeah, once I think we are clear about it, okay, then I also found what is that guy who was giving lectures. He has theory of color or something like that on photography. Some 3 4 videos, very good one. He is explaining how to shoot, in what color and things like that. Exactly. So that Pixel Village, which now for that Pixel Village channel was created. Yes, yes. So sure about the photographers, and what they do, they generally invite different various professional photographers from industry, and then they provide the technical knowledge, then new concepts and all. So Pixel Village is like a community of various photographers, international and national photographers. Like this was your rainbow geometry, that how sun rays are coming towards the earth, and then due to these droplets the humidity, that automatically color gets varied in 7 different shades. And when we see from our eyes, so that triangle, that is a 42 degree and 40 degree, so that color is reflecting with our eyes. So I will just At a later stage you can just go through for information side. So that again, it was a great thing, and thank you so much for sharing this information knowledge with me, sir. So in the last lecture, we saw about some white balance, and then we talk about some kind of metering. But in metering, we haven't gone through with in detail, in depth, that what exactly is metering, it's all about, and how metering gets varied, and where we have to we have to use which mode. So just in your camera, I will share you one metering, exactly what does mean. You have your camera with you, sir, right now? Yes. Okay. So to open the camera, that start on, and then go into the settings using the menu button. Okay. So in menu, then shooting mode, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा मीटरिंग करके. Metering. Okay. Right. Metering and exposure. हाँ, तो अभी हमने जो सीखा था ना सतीश जी की एक्सपोजर मतलब हमें एक मीटर होता है कैमरा में जो हमें इंडिकेशन बताता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है या फिर मेरी जो इमेज में ले रहा हूँ उसमें लाइट ज्यादा होगा या कम होगा. जैसे अभी आप जो मेरा इमेज देख पा रहे हो, सो यहाँ पर हमेशा एक कर्टन लगा होता है, सो दैट्स द रीजन ये लाइट ब्लॉक करता है. लेकिन अभी यहाँ पर जो इस साइड वाला एरिया है ये पूरा का पूरा एक ज्यादा ओवर एक्सपोज हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे लाइट बाहर से ज्यादा आ रहा है. अभी आज बाय लकीली बारिश थोड़ी रुक गई है, बट दिस साइड ऑफ माइन इज हैविंग टू मच डार्क. तो इस सिचुएशन में अगर ऐसे कोई फ्रेम है जहाँ पर आपके अलग अलग लाइट सोर्सेस है,
तो आपको जो मीटरिंग का एक्सपोजर जो होता है, कैमरा में जो एक्सपोजर मीटर हमें शो करता है, उस मीटर Okay. का कुछ बैकग्राउंड है, मतलब वो मीटर Okay. 3 अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रख के हमें शो करेगा। सो Okay. उसको कहते हैं मीटरिंग। मीटरिंग मतलब क्या, कि आपका जो एक्सपोजर मीटर आपको शो कर रहा है कि एग्जैक्टली आपके इमेज में लाइट ज्यादा है या कम है, तो वो किस बेसिस पे शो कर रहा है, कुछ तो बेसिस होगा ना उसका। तो वो 3 अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे अगर आपके पास अभी कैनन का कैमरा है, तो उसमें इवेल्युएटिंग, पार्शियल, स्पॉट और सेंटर वेटेड होता है। आपका अगर निकॉन का कैमरा है, तो उसमें आपको मैट्रिक्स मीटरिंग एक शो करेगा, एक आपका है सेंटर वेटेड और तीसरा है स्पॉट मीटरिंग। आप 3 अलग अलग ऑप्शन जब मीटरिंग के ऊपर क्लिक करोगे, तब आपको 3 अलग अलग ऑप्शन शो करेंगे। तो एक होगा आपका मैट्रिक्स, जहां पर आपको पूरा का पूरा एक फ्रेम दिखाई देगा जिसमें एक सर्कल है, मैट्रिक्स मीटरिंग। दूसरा सेंटर वेटेड लिखा होगा और तीसरा स्पॉट मीटरिंग लिखा होगा। मीटरिंग के अंदर ही वो ऑप्शन है। Okay. No, metering ka andar, I just went there now. Okay, okay. Here it is given metering and exposure. Right. If I go inside that, fine tune optimal exposure, shutter release button, auto meter of delay, self timer, monitor of delay, like that. But EV steps for exposure, something it says, then 1/3 step, 1/2 step, something it is saying. Okay, so that advanced setting is there. Okay, no problem. Okay. D90, because in Canon it is already mentioned, but we will see कि Nikon में exactly कहाँ पर है वो ऑप्शन, बिकॉज हर एक कैमरा के जो सेटिंग्स होते हैं थोड़ी सी। yesterday it was there, today it कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम लोग चेक कर लेते हैं, हमें आइडिया आ जाएगा कि किस ऑप्शन में कई बार होता है। आपको ये प्लेबैक मेनू शो कर रहा है सर, मैं आपको थोड़ा ओपन कर देता हूँ। Okay. Now maybe our first menu is the playback menu. Let's take a look at the selections we have. Now how we get there is by pressing the menu button. That's third up from the bottom on the back. I just press it once, even if I'm in shooting mode, bam, you're into the menus. And we're going to navigate with our multi-position controller. If the icon is on the left of the screen and you go up and down, you're going to go through the different menus. But as soon as you get to the top, you're on the playback menu. If you go right on any of these, you get into the selections that that menu has. So let's take a look from inside the camera at the menu and show you what each one of these things does. Delete, well, that's pretty obvious. If we press to the right on the multi-position controller, that takes us into that selection. And on the delete menu, we can go then and select which ones we would like to delete. Now we can delete all of them. If we go to the right on that, it's going to ask you to confirm it because that's pretty serious, and we'd have to go up and press OK. See, it goes red there. But I'm going to select no, and then go up here to the other selections that we have. We can go in and delete selected images. If we go to the right on that, we can go and left and right and hit the negative magnifying glass button, the second up, and select several images. अभी जो आपका ये शूटिंग स्क्रीन है जो एलसीडी है सर, उसमें आपको पहले एक प्लेबैक मेनू दिखाई देता है, देन सेम, आई एम ऑन द सेम थिंग। ओके, तो इसमें देखिए सेटिंग का जो ये ऑप्शन है ये वाला, और सेकंड जो ऑप्शन है कैमरा का जिसको शूटिंग मोड कहते हैं, उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। सेकंड जो कैमरा का ऑप्शन है ना, उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन शो कर रहे हैं अभी जो कैमरा का? मैनेज पिक्चर कंट्रोल, इमेज क्वालिटी, इमेज साइज, आईएसओ सेंसिटिविटी, कलर स्पेस, और नीचे ना ड्रैग कीजिए अपना जो नेविगेशन है और नीचे उसको स्क्रॉल कीजिए नेविगेशन। एक्टिव फोल्डर, मूवी सेटिंग्स, ISO NR। ओके, दैट्स इट। ओके, उसके बाद में देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका जो सेटिंग का है, अब लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ ऑप्शन आपका सेटिंग का है। ओके, सेटिंग का एक आइकॉन शो कर रहा है आपको। ओके, क्लिक किया ना, वो सेटिंग का आइकॉन आप क्लिक कीजिए। सेटअप मेनू, हाँ, सेटअप जो है उसको क्लिक कीजिए, उसमें आपको शो कर रहा है कहीं पर ऑप्शन इमेज कंट्रोल, इमेज कमेंट, लैंग्वेज। मीटर तो नहीं है इसमें, मीटरिंग नहीं है। एलसीडी ब्राइटनेस, क्लीन इमेज सेंसर, लॉक मिरर, वीडियो मोड, HDMI, वर्ल्ड टाइम, लैंग्वेज, ऐसा। सर अभी आपने जो कैमरा का आइकॉन था ना, उसके नीचे देखिए पेंसिल का आइकॉन है, कस्टम मेन्यू सेटिंग, उसमें सेकंड ऑप्शन है मीटरिंग एक्सपोजर, ऑटो फोकस, मीटरिंग एंड एक्सपोजर। हाँ, तो मीटरिंग एंड एक्सपोजर के ऊपर ओके कीजिए। आई एम देयर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो उसको भी ओके कीजिए।
क्लिक किया, हाँ उसमें आपको कुछ ऑप्शन शो कर रहा है? EV step for exposure control, हाँ fine tune optimal exposure, shutter release button, auto meter off delay, self timer, monitor off delay, ऐसा. ओके ओके. But I remember yesterday when you showed, when we went, we got whatever you had in your camera, same thing came here. I don't know which mode we went. It was there when we did. No problem, sir. We will just find it out, because what happens sometimes the menu is there, but due to all these settings, and also there are chances that we forgot that in which option we went over there. But Yeah, correct. कोई दिक्कत नहीं, because wide balance, set picture control. ओके, जो रिसेंट सेटिंग है ना सर, लास्ट ऑप्शन, वो एक बार क्लिक कीजिए. कैमरा का आपने क्लिक किया था? नहीं, अभी यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपने पहले प्लेबैक मेनू था, देन आपका शूटिंग मेनू, देन आपका कस्टम सेटिंग्स, उसके बाद में नॉर्मल सेटिंग, लास्ट में रिसेंट सेटिंग करके है कि उसमें आपको शो करता है मीटर. जब स्क्रॉल डाउन, रिसेंट सेटिंग इज हाइड इमेज, स्लाइड शो, प्लेबैक फोल्डर, ऑल दैट इज देयर. ओके. बैटरी, GPS, firmware, ISO, sensitivity, display mode, fine tune optimal exposure, EV steps per exposure, metering तो नहीं आ रहा है. Okay. See, it is saying here, it came now, okay. Something we had switched on. Exposure compensation icon is not displayed when exposure is altered from the default value. Continue. I said, if you go down, okay, then it will not do anything. If you come back, okay, it came, matrix metering and all came. राइट. सो मे बी एक ऑप्शन ऑन रह गया था, इसकी वजह से वो जो मैनुअली हम लोगों को चेंज करना होता है वो ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं कर रहे थे, बट अभी शो कर रहे हैं आपको, राइट? मैट्रिक्स और नाउ इट इज शोइंग मैट्रिक्स मीटरिंग, सेंटर वेटेड मीटरिंग, स्पॉट मीटरिंग, राइट. तो ये जो 3 मेन्यू है ना, जो निकॉन में ज्यादा करके यूज किए जाते हैं, अगेन यहाँ पर भी अभी हम लोग निकॉन का कैमरा देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको सेम शो करेगा. तो ये 3 अलग अलग मीटरिंग मेन्यू होते हैं जो हमें एक हेल्प करते हैं कि मेरा जो एक्सपोजर मीटर मुझे शो कर रहा है कैमरा में, वो प्रॉपर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब पहला जो उसमें एक होता है जो आपका है मैट्रिक्स मीटरिंग. जो मैट्रिक्स मीटरिंग मतलब क्या, कि जो मेरा फ्रेम मेरे कैमरा के, मतलब जिस व्यू फाइंडर से मैं जो भी फ्रेम मेरे कैमरा के लिए सेट कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरा फोटो क्लिक करने वाला हूँ, तो जितना लाइट मेरे सेंसर तक आने वाला है, तो कैमरा क्या करता है, पूरी फ्रेम को एनालाइज करेगा. पूरी फ्रेम को एनालाइज करने के बाद में कहाँ पर फ्रेम में लाइट ज्यादा है, कहाँ पर कम है. जैसे अभी मान लीजिए ये मेरा फ्रेम है, तो इस फ्रेम में मेरा बैकलाइट में मैंने और एक लाइट लगा दिया, तो अभी मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में थोड़ा सा डार्कर में हूँ, लेकिन मेरा बैकलाइट में बैकग्राउंड में एक लाइट और लगा है. तो कैमरा जो मैट्रिक्स मीटरिंग है उसमें क्या करेगा, पूरा फ्रेम एनालाइज करेगा और उस फ्रेम को आपको बताएगा कि इस फ्रेम में अभी आपका जो एरिया है वो ज्यादा ब्राइट हो रहा है या कम ब्राइट हो रहा है. मतलब ये कैसे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और फ्लेक्सिबल मीटरिंग मोड है जो मैक्सिमम फोटोग्राफर्स यूज करते हैं. मीटरिंग मैट्रिक्स में आपका कैमरा पूरी फ्रेम को एनालाइज कर रहा है. सेकंड जो था सेंटर वेटेड. अभी सेंटर वेटेड जो है उसमें क्या होगा, कैमरा सिर्फ सेंटर वाला पार्ट, जितना फ्रेम है फ्रेम के सेंटर में, जैसे अभी अगर मैं हूँ तो मेरा सिर्फ इतना पार्ट को कैमरा एनालाइज करेगा और इसमें लाइट आ रही है कि नहीं. मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लाइट कम है मेरे चेहरे के ऊपर और बैकलाइट में ज्यादा है, तो बैकलाइट कैमरा एनालाइज नहीं करेगा, सेंटर में जितना पोर्शन है उसको ही लेगा, उसमें लाइट ज्यादा है या नहीं वो आपको एक्सपोजर मीटर में शो करेगा. दैट इज योर सेंटर वेटेड. तो इसमें सेंटर वेटेड में कैमरा ने क्या किया, मैक्सिमम फोकस जो रखा वो सेंटर में रखा और थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को एनालाइज करेगा. अगर ज्यादा लाइट वगैरह दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो सेंटर में एरिया है उस एरिया को ही वो एक्सपोजर आपको बताएगा कि इसमें एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है. और तीसरा जो स्पॉट है, स्पॉट में क्या होता है
ये जो ऑटो फोकस वगैरह है, जैसे मैं ऑटो फोकस एक स्पॉट पे मैंने लॉक कर दिया मेरे कैमरा में, तो वैसे ही आपका जो सेंटर है कैमरा का या फिर कोई भी स्पॉट हम लोग जो डिसाइड करेंगे, कैमरा सिर्फ उस स्पॉट को आइडेंटिफाई करेगा और उस स्पॉट पे आपका इमेज डार्कर है या ब्राइटर है वो आपको आपके एक्सपोजर मीटर से शो करेगा। मतलब 3 अलग अलग है। हम लोग एक वीडियो भी देखेंगे पिक्सल विलेज का जो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा। सिर्फ इतना हमें ध्यान में रखना है कि जो मैट्रिक्स मीटरिंग है निकॉन में और कैनन में जिसको इवेल्युएटिव मीटरिंग कहते हैं, तो वो मीटरिंग एक बेस्ट तरीका होता है जहां पर अगर आपके फ्रेम में कोई अलग लाइटिंग सिचुएशन भी है, कई बार हम लोग स्टूडियो शूट कर रहे हैं, कई बार आउटडोर शूट कर रहे हैं, जैसे अभी इस सिचुएशन में मेरा जो लाइटिंग सिचुएशन है वो अनइवन है, मतलब यहाँ पर कम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इस साइड में मेरा लाइटिंग अभी है ही नहीं, इस साइड में लाइटिंग बहुत ज्यादा है। तो इस केस में अभी जो मेरा वेबकैम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पे मैं DSLR कैमरा जो है उसको मैं सामने रखूं और मैं मैट्रिक्स मीटरिंग पे डालूंगा, तो कैमरा क्या आइडेंटिफाई करेगा कि इस टोटल फ्रेम में जितना आपको शो कर रहा है, इसमें यहाँ पर जो ज्यादा लाइट है उसको भी एनालाइज करेगा, जो कम लाइट है उसको भी एनालाइज करेगा, और उसके हिसाब से मुझे एक्सपोजर मीटर बताएगा कि अभी मेरा एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। सेम आपका जो सेकंड मेथड है जहां पर आपको कहा जाता है सेंटर वेटेड, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी था मैथ्स में कि अगर से वेटेड सेंटर एवरेज कैसे निकालना है, तो 2+2 डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोग जो एवरेज आता है तो उसमें क्या करेगा कैमरा, सेंटर का पोर्शन लिया, 40 to 60% पोर्शन ले लेगा सेंटर का, उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है फ्रेम का उसको मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकालेगा। तो वेटेड एवरेज करके जो भी अमाउंट आएगा लाइट का वो आपको एक्सपोजर मीटर में शो करेगा कि ये डार्कर हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। स्पॉट में सिर्फ छोटा सा एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आप सिलेक्ट करोगे, अगर मान लीजिए आपने मेरा फेस सिलेक्ट किया स्पॉट में, तो कैमरा पूरे फ्रेम में कहीं पर भी लाइट कितना भी रहने दीजिए, वो सिर्फ जहाँ पे अपने स्पॉट रखा है, जहाँ पर आपने स्पॉट आइडेंटिफाइड किया है, आप स्पॉट मैंने डिसाइड किया है, लॉक किया है मेरे कैमरा में, वही सिचुएशन पे उसी पैसेज के ऊपर कितना लाइट थ्रो हो रहा है वो मुझे आइडेंटिफाई करके उसी पोर्शन को बताएगा कि ये ज्यादा एक्सपोज हो रहा है या फिर कम एक्सपोज हो रहा है। तो जिस मीटर पे हम लोग डिपेंड करते हैं कि जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मैं हमेशा मीटरिंग को ज्यादा बेस रखता हूँ कि मेरे एक्सपोजर मीटर को ज्यादा बेस रखता हूँ कि मेरा एक्सपोजर मुझे कैमरा ज्यादा बताएगा या कम बताएगा। और वो भी डिपेंड करता है कि मैंने मेरा एक्सपोजर मीटर कौन से मोड पे रखा है। अगर मैंने स्पॉट पे रखा है तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज स्पॉट में अगर मैं रख रहा हूँ और मैं स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ जहाँ पर 3-4 अलग अलग लाइट सिचुएशन, 3-4 अलग अलग लाइट्स मैंने लगाए हैं, तो कैमरा मेरा क्या करेगा, सिर्फ सब्जेक्ट को मैंने अगर स्पॉट में रखा है तो बाकी के लाइट को कैमरा एनालाइज ही नहीं करेगा, बाकी जो अलग अलग फ्रेम में है। और अगर मैंने वेटेड एवरेज में रखा है तो क्या करेगा कैमरा, जो सेंटर का पोर्शन है जहाँ पर मॉडल खड़ा है वो वाला एरिया प्लस थोड़ा फर जो बाकी का जो बचा हुआ एरिया है उसका मल्टीप्लाई करेगा। मतलब अगर यहाँ पर मेरा लाइट कम है, बाजू में थोड़ा ज्यादा है, तो उसको मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकालेगा और उसके हिसाब से मुझे मेरा एक्सपोजर मीटर शो करेगा। अगर इवैल्यूएटिव पे मैं रख रहा हूँ तो इवैल्यूएटिव पे पूरा का पूरा फ्रेम एनालाइज करेगा कैमरा एंड फिर मुझे बताएगा कि अभी मेरे इमेज में लाइट ज्यादा है या कम है। तो हम लोग एक वीडियो देखेंगे तो एक आइडिया भी आ जाएगा एंड नोट्स भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है मीटरिंग एंड ऑल। ठीक है ठीक है तो ओके, ये हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो है इसमें मीटरिंग में मैट्रिक्स मीटरिंग, अभी आपको स्क्रीन शो हो रहा है सर, ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है आपको? ओके, तो जो मेथड है मैट्रिक्स उसमें क्या है कि प्रोड्यूस नेचुरल रिजल्ट इन मोस्ट सिचुएशन, कैमरा यूजेस सेंसर टू मीटर अ वाइड एरिया ऑफ फ्रेम। अब यहाँ पर हमने जैसे अभी सीखा कि पूरा का पूरा फ्रेम जो कैमरा एनालाइज करेगा, तो ये आपको नेचुरल रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जैसे जिस सिचुएशन में मैं क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे नेचुरल लाइट है, जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट है, तो पहले पूरे फ्रेम में कितना लाइट अवेलेबल है सबको एनालाइज करके मुझे मेरा कैमरा जो है वो एक्सपोजर मीटर शो करेगा। सेकेंड होता है सेंटर वेटेड। अभी सेंटर वेटेड जो कैमरा है वो उसमें क्या होता है कि कैमरा मीटर्स इंटायर फ्रेम बट असाइंस ग्रेटेस्ट वेट टू द सेंटर एरिया। अब इसमें क्या, कैमरा पूरे फ्रेम को तो करेगा ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर का जो एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करेगा। इट विल असाइन ग्रेटेस्ट वेट टू द सेंटर एरिया। क्लासिक मीटर फॉर पोर्ट्रेट, अभी ये ज्यादा करके पोर्ट्रेट हम लोग शूट कर रहे हैं वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेड व्हेन यूजिंग फिल्टर्स
with an exposure factor, filter factor over one stop. अब यहाँ पे कैसे कि अगर कोई भी मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर भी होता है, पोलराइज फिल्टर होता है जो हमारे सनग्लासेस में होता है, तो वो अगर मैं फिल्टर मेरे कैमरा के सामने में लगा रहा हूँ और तभी मैं अगर ना यूज कर रहा हूँ, तो आई कैन गो फॉर द सेंटर वेटेड, अगर मुझे जरूरत है, मेरा लाइटिंग सिचुएशन जो है उस तरीके से मैंने सेट किया है, एंड आई वांट ओनली माय मेन सब्जेक्ट दैट इज द सेंटर ऑफ द पर्टिकुलर फ्रेम विल बी इन दैट लाइट और डार्कर. सो वो एक मुझे सेंटर वेटेड तभी मुझे सिलेक्ट करना है. स्पॉट जो क्या होता है कि कैमरा मीटर्स करंट फोकस पॉइंट. अब स्पॉट में वही जो मैंने आपको बोला कि हमारा जो फोकसिंग पॉइंट हम लोग रखते हैं, तो मेरे फ्रेम में अगर मान लीजिए फोकसिंग पॉइंट यहाँ पर जो एक डंडा दिखाई दे रहा है वहां पर रखा मैंने, तो वहां पे उस फोकसिंग पॉइंट को कैमरा ध्यान में रखेगा. यूज टू मीटर ऑफ सेंटर सब्जेक्ट्स if auto area is selected for autofocus area mode, then describe okay, camera will meter the center focus point. Exposure that subject will be currently exposed even the background is much brighter or darker. अब इसमें क्या होगा कि कई बार आपने ना जो फोटोज देखे होते हैं स्टूडियो में, जहाँ पर हमारा जो पर्दा होता है बैकग्राउंड में, वो रेड कलर का पर्दा यूज करते हैं, ग्रीन कलर का पर्दा यूज करते हैं या फिर ब्लू कलर का. अब उसमें क्या है कि वो कलर तो ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए ब्लैक कलर का कोई पोर्शन यूज कर रहा हूँ, जैसे मेरा भी जो मैं आज शूट करने वाला हूँ, जो मेरी शायरीज वगैरह शूट करने वाला हूँ, वहाँ पे मेरा एरिया ब्लैक होगा, तो मेरा बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है, तो अब कैमरा कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो कैमरा सिर्फ मेरा जो लाइट बॉडी है, मेरे बॉडी के ऊपर जितना लाइट गिर रहा है उसके हिसाब से मुझे एक पर्टिकुलर इंडिकेशन बताएगा कि मेरा जो पूरा फ्रेम है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है या फिर अंडर एक्सपोज हो रहा है. तो ये एक है. अभी आपके कैमरा में इस तरीके का आपको शो कर रहा होगा मीटरिंग मोड. तो ये निकॉन का प्रोवाइड किया, सॉरी ये कैनन का प्रोवाइड किया है उन्होंने. इवैल्यूएटिव मीटरिंग, पार्शियल मीटरिंग, स्पॉट और सेंटर वेटेड. कैनन में 4 अलग ऑप्शन होते हैं, निकॉन में 3 होते हैं. इवैल्यूएटिव और मैट्रिक्स सेम. आपका ये जो पार्शियल मीटरिंग है ये थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये भी आपके निकॉन के कैमरा में जिसको सेंटर वेटेड कहा जाता है. You can measure the light in 2 ways. One, you can measure the incident light, which is the light which is falling on the subject, and which is, in this case, me, for which you can use a light meter, which of course we will discuss in an upcoming video. The second way is to read the reflected light, the light which is reflected off the subject. That's what a modern camera does. It reads the reflected light from your subject. An in-camera exposure meter reads the reflected light, not the incident light. The catch is the reflected light is not exactly equal to the incident light. A lot depends on the color, the type of material, all that is present in the field or on the subject. There are many different ways using which the camera reads the reflected light. And different manufacturers have given different names to each of those methods. The most complex and the safest one is called the matrix metering, or the evaluated metering, or the zone metering technique. The most dependable among the 3 and most useful for most of you is the matrix meter reading. In matrix meter reading, what the camera does, it splits your field into multiple zones and analyze them individually and arrive upon exposure, an appropriate exposure, by going through a series of calculations. It's very intelligent. It's not very simple. It even compensates for a backlight whenever there are backlights, strong backgrounds, or brightly lit backgrounds. The second one is called center-weighted reading. The center-weighted reading accounts for about 60 to 80% of your field. While center-weighted reading is perfectly okay for, let's say, evenly lit situations, if there is a strong backlight, that meter can get fooled a bit. The third one, and my favorite, is the spot meter. You require a little deeper understanding of exposure if you want to use a spot metering method effectively and more creatively. However, what it does is, it picks a very small area at about 3 to 5 degrees of your entire field and measures the reflected light only from that area. Now,
You can also move that area around. That's another interesting point. It's usually associated with the focusing point. So wherever you shift your focusing point to, the camera reads even the exposure of that particular point. Which means if you want to read the reflected light just from my skin, you can point and bring that focusing square here and read off. Similarly, you can move it around anywhere in the field and read off a particular point of your choice and expose for that. You can use all these three metering patterns with any camera modes, that is manual, aperture priority, shutter priority, or the program mode. To illustrate what I just said, we shot some images. Let me show them to you. Nikhil, can you bring that computer close to me, please? Thank you. We have two varied situations, just side by side. One has, we were looking out from our terrace, and we saw this even sky, a busy backdrop, but there are these bright white buildings in the horizon. The second one is the open space on our floor, which is evenly lit. There's not too much contrast in this picture. And we got our model, Aishwarya, to pose for us for a couple of pictures. First, let us look at what happened in the evenly lit space. Now, this one, the first one is with matrix meter reading. It's evenly lit. There's not too much of a problem in this place. It's very well exposed. The second one, this is the center weighted reading. Again, very acceptable image. No major problems. Everything is nice, clean, very acceptable. And the third one is using a spot meter. This again has no major variations in the image. It's very crisp, clean, and clear. So there are no major difference in these three images. Now look at the images shot in the second situation with she against the bright outdoor. Okay, the first image is shot in the matrix meter reading. Looking at it, you can see that the camera understood that the backdrop was very bright. So it compensated for the bright backdrop and it corrected the light which is required to expose our face or the model properly. This one is shot with center weighted reading. Center weighted reading, like I said, takes an average reading of 60 to 80% of your screen. And while doing that, because it's not that intelligent, like the matrix meter reading, it got fooled by the bright buildings on the backdrop and camera underexposed the image. The next one is the professional's favorite. It's a spot meter reading. Here we got an accurate skin reading. And of course, backdrop went overexposed, but this is the safest way to measure light in this kind of conditions. We shot a few other examples also to demonstrate this point further. अब इस सिचुएशन में कैसे लाइट जो आ रहा है शाम का टाइमिंग है एंड द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर डार्कर एरिया है और यहाँ पर डायरेक्टली लाइट सोर्स हिट कर रहा है. लेकिन मैट्रिक्स की वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा एरिया फ्रेम ने एनालाइज किया और फिर मुझे बताया कि मेरा एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है या कम. तो दैट्स द रीजन में ये जो मेरा पोर्शन है दिस साइड जो लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में एकदम डार्कर एरिया, उसको भी मैं प्रॉपरली वहां पर कैप्चर कर सका विद द अप्रोप्रिएट लाइट जो हमें रिक्वायर है. लेकिन अगर मैं सेट मैट्रिक्स को छोड़ के अगर मैं सेंटर वेटेड में जाता हूँ तो कैसे होगा एंड स्पॉट में जाता हूँ तो किस तरीके से होगा. ये सेंटर वेटेड में कैमरा ने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया में लाइट ज्यादा आ रहा है तो इसी एरिया का एक्सपोजर मीटर मैंने शो किया. तो कई बार हमें ऐसा होता है सर कि एक्सपोजर तो मुझे प्रॉपर मीटर तो 0 दिखा रहा है, मतलब मीटर प्रॉपर शो कर रहा है, लेकिन जो फाइनल इमेजेस है तो वो इस तरीके से आते हैं. तो वो मेरा मीटरिंग मोड कहीं ना कहीं मैंने अलग तरीके का सेट किया होता है. तो दैट्स द रीजन में किसी भी सिचुएशन में जाने के बाद मेरा एक्सपोजर मीटर तो मुझे प्रॉपर शो करेगा 0, ना प्लस शो करेगा ना माइनस शो करेगा. लेकिन जब फाइनल इमेज में क्लिक करूंगा तो मुझे इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा. यहाँ पर उन्होंने शटर स्पीड यूज किया है 1/5000 ISO 200 और f-stop 4.5. तो ये 1/5000 जो किया है क्योंकि ऑलरेडी एक स्टिल इमेज हम लोग शूट कर रहे हैं एंड अगेन यहाँ पर लाइट सोर्स बहुत ही ज्यादा हो क्योंकि वो डायरेक्टली सन आ रहा है. तो ये एक हो सकता है. अभी स्पॉट हम लोग चेक करेंगे.
अभी स्पॉट में उन्होंने ये स्पॉट डिजाइन किया, तो अगर इस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया तो कैमरा ने सिर्फ इसी स्पॉट पे कितना रिफ्लेक्टिव है वो चूज किया। अगर सेम में ये स्पॉट निकाल के अगर यहाँ पर कहीं स्पॉट रखता तो फिर मेरा पूरा का पूरा ये इमेज ही चेंज हो जाता। तो वो डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ पर मेरा ऑटो फोकस जो पॉइंट है उसको मैं मूव करता हूँ, और उसमें आइडेंटिफाई करना वो एक अलग टास्क है। अगर मेरा आइडेंटिफाई किया हुआ एरिया लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाता है, जैसे कोई मूविंग मॉडल है और उसका मैं बोल रहा हूँ उसको कि आप वहाँ पे स्टेबल खड़े रहिए, तो थोड़ा भी चेंज हो गया ना तो आपका इमेज पूरा आपको अलग एक्सपोजर मिल जाएगा। ये स्पॉट एक डिफरेंट अवेलेबल है जहाँ पर मुझे सिर्फ छोटे से एरिया को ही मतलब आइडेंटिफाई करना है, और उसको बेस लेकर ही मेरा एक्सपोजर मीटर जो है मुझे वहां पर सेट करना है। अगेन यहाँ पर मैट्रिक्स सिचुएशन, लाइट जो है उनका राइट हैंड साइड से दरवाजे की तरफ से लाइट आ रहा है। ये जो एरिया है ये एरिया पूरा ब्लैक है बिकॉज यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है नहीं अवेलेबल। लाइक अपर साइड जो हम लोग सेक रहे सीलिंग के टाइप, वहां पर भी कुछ नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या हुआ, इवेल्युएटिव में पूरा का पूरा एरिया उसने आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे नीचे भी थोड़ा सा एरिया जो है वो शो कर रहा है, प्लस ऊपर के साइड में भी थोड़ा सा शैडो है, पर मैं एरिया आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज है। जैसे यहाँ पर बॉटल्स वगैरह है, लेकिन वो इसमें नहीं होगा। लाइक सेंटर वेटेड में यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर क्या कैमरा ने सिर्फ सेंटर का एरिया जो है उसको ही आइडेंटिफाई किया, नीचे का और ऊपर का जो एरिया है मेरा वो अंडर एक्सपोज हो गया। अब इसको मैं एडिटिंग में जब करने जाऊंगा तो एडिटिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा बिकॉज सेंटर में ऑलरेडी ज्यादा लाइट है, और जब मैं एडिटिंग में एक्सपोजर बढ़ाऊंगा तो पूरे के पूरे इमेज का एक्सपोजर बढ़ेगा, पूरा जो फोटो है उसका एक्सपोजर बढ़ेगा। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सपोजर प्रॉपरली नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो वो मुझे मीटरिंग पहले ध्यान में रखना पड़ता है कि जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम टाइम जो मीटरिंग है वो कौन से मोड पे होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी सिचुएशन में रन एंड गन सिचुएशन है या फिर स्टिल लाइफ आप कोई भी शूट कर रहे हो, तो मैट्रिक्स इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड वी कैन से लाइक इंटेलिजेंट मोड, जहाँ पर मैक्सिमम आपका काम जो है आपका एक्सपोजर मीटरिंग का वो कैमरा ही कर देता है। तो जैसे ही आप किसी अलग सिचुएशन में मूव ऑन करोगे जहाँ पर लाइट अलग थोड़ी थोड़ी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लाइटिंग सोर्स अवेलेबल है, तो आपका कैमरा उसके हिसाब से आपको एनालाइज करके बताएगा। लेकिन स्पॉट और सेंटर वेटेड में आपको मैनुअली मीटरिंग के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी मीटरिंग आपका चूक जाता है तो फाइनल इमेज जो है वो आपका अनबैलेंस इमेज होगा, लाइक दिस वन। यहाँ पर मेरा बीच में फोकस प्रॉपर हुआ है, लाइट भी प्रॉपर है, यहाँ पर मेरा लाइट कैप्चर प्रॉपरली हुआ है, लेकिन जो मेरा मेन अपर साइड एंड लोअर साइड है वहां पर मेरा लाइट अनइवन कैप्चर किया गया है। अभी सेम यहाँ पे स्पॉट, तो यहाँ पर अभी स्पॉट इसने इस बॉटल के ऊपर रखा है, तो इसकी वजह से बॉटल जो है वो नॉर्मल एक्सपोजर में आए, लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर लाइट ज्यादा कैप्चर हुआ और ये ओवर एक्सपोज हो गया। सेम अपर साइड में आप देख पाते हो यहाँ पर पूरा का पूरा लाइट जो है वो अंडर एक्सपोज हो गया। अगर यहाँ पर मैं स्पॉट ये निकाल कर मैं अगर यहाँ पर कहीं स्पॉट मेरा रखता तो मेरा जो ये पूरा बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड प्रॉपर एक्सपोजर में दिखाई देता, और ये बॉटल्स वगैरह जो है वो पूरा अंडर एक्सपोज हो जाता। From the images that we shared with you, I'm sure you got the concept very clearly. Use it to create the kind of images that you want to create. There is nothing called a correct exposure or an incorrect exposure. There is only a good image and a bad. If two stops under exposed image is what is giving you the kind of feeling that you want to create and convey, that's your correct exposure. Or a slightly overexposed image is what is going to convey what you wanted to convey, then that's your right exposure. These modes are available for anyone to use, so use it creatively. Select your favorite mode to create the effect that you would like to achieve. Hope. अभी जैसे ये यहाँ पे इन्होंने एक बात कही कि कोई भी एक्सपोजर जो है हमारा वो एक्यूरेट हम लोगों को जैसे चाहिए वैसे ही हम लोग जब ना उसको यूज करेंगे, तो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरा कैमरा में जो फाइनल इमेज क्लिक करना है वो लोगों को किस तरीके से शो करना है। लाइक जब लास्ट लेक्चर मैंने आपको लिंक भेजा था सर, उसमें मैंने आपको एक और लिंक भेजा था जिसमें कैनन का एक वाइल्ड लाइफ सेमिनार हुआ था। सचिन राय करके जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है उनका एक सेमिनार जो हुआ था वेबिनार, तो वेबिनार का भी मैंने उसमें आपको अटैच करके भेजा था। उसमें उन्होंने एक इमेज ली है जहाँ पर मॉर्निंग के टाइम एक टाइगर है जो शो कर रहा है, मतलब देख रहा है,
और वहां पे उन्होंने जानबूझकर एक्सपोजर जो है उनका 2 स्टॉप कम कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक लाइट प्रॉपर तरीका कैप्चर हुआ है और जो इमेज उनकी कैप्चर हुई वो अलग ही कैप्चर हो गई। लाइक हम लोग ना वो भी एक देख लेंगे तो एक आइडिया आ जाएगा मुझे कि किस तरीके से मैं क्रिएटिवली इस एक्सपोजर मीटर को चेक कर सकता हूँ। अभी ये एक फ्रेम उन्होंने कैप्चर किया था। इस फ्रेम के बारे जब बताया उन्होंने, आपको ये फोटो शो कर रहा है सर, जिराफ का फोटो है। तो इसमें क्या है कि ये कुछ शाम के टाइम उन्होंने क्लिक किया था और यहाँ पर लाइट ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर 2-3 स्टॉप एक्सपोजर कम कर दिया, लाइक अंडर एक्सपोज इमेज कर दिया। तो अंडर एक्सपोज की वजह से क्या हुआ कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड प्रॉपर ले आया और ये इनका सिर्फ ब्लैक कलर का शैडो जो है वो शैडो कैप्चर हुआ है। तो ये मुझे तब यूज करना है जहां पर मुझे थोड़े क्रिएटिव टाइप ऑफ शॉट जो है वो सब क्लिक करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर वो प्रॉपर एक्सपोजर यूज करते तो यहाँ पे जो जिराफ वगैरह है वो भी प्रॉपरली शो करता, लेकिन उनको सिर्फ जिराफ की शैडो दिखानी थी, ताकि वो सिर्फ पर्टिकुलर उनका जो आकार है जिराफ का वही मुझे शो करना है लोगों को। तो मैं उस तरीके से भी इमेज को क्लिक कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि मुझे जो एक्सपोजर है मैं कभी मुझे ज्यादा करना है, कभी मुझे कम करना है। लाइक यहाँ पर उन्होंने सेम ऐसे किया, जो बैकग्राउंड है यहाँ पर एक ब्लैक कलर का पहाड़ टाइप था, तो उन्होंने थोड़ा स्टॉप जो है वो अंडर एक्सपोज कर दिया 2 पॉइंट, और उसकी वजह से मुझे इस तरीके का पूरा बैकग्राउंड जो है ब्लैक मिला एंड मेरा जो पैरेट्स है वो प्रॉपर शो हो गए। तो उन्होंने थोड़े से इसमें इमेजेस बताए थे, आई थिंक, और एक इमेज बताया था उन्होंने, ये लाइक वाइड एंगल का जो हमने देखा था, वाइड एंगल लेंस से जो शूट करते हैं, ये लो शटर स्पीड का ओके हाँ, यहाँ पर भी ये आफ्टरनून में उन्होंने इमेज निकाला था और यहाँ पर उन्होंने इमेज को 2 स्टॉप और अंडर एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से जो इमेज में है थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आ गया एंड रिफ्लेक्शन हम लोग देख पा रहे हैं। और ये इमेज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइट, मतलब ज्यादा लाइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये उन्होंने दोपहर के टाइम निकाला था जब उन्होंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये मुझे ध्यान में रखना है कि मेरा जो एक्सपोजर है उस एक्सपोजर को मुझे किस तरीके से यूज करना है। लाइक यहाँ पर भी अभी एक्सपोजर उन्होंने प्रॉपर करेक्ट एक्सपोजर पे लिखा है, तो वो मुझे पूरा का पूरा जो ये भालू वगैरह है प्रॉपर शो कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने एक इमोशंस कन्वे करने की कोशिश की है, लाइक एक माँ और उसके बेटे के बीच में जो इमोशंस होते हैं, तो एनिमल में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे लोगों के ऊपर क्या मैसेज शो करना है। तो वो सारी चीजें, जैसे यहाँ पर भी उन्होंने 2 स्टॉप कम किया है, 3 स्टॉप कम किया है एक्सपोजर। तो जरूरी है कि जब मैं सिचुएशन कोई भी शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास अवेलेबल लाइटिंग सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से मुझे जो मेरा मीटरिंग मोड है या फिर मान लीजिए जो मेरा एक्सपोजर मीटर है उसको मुझे कम करना है, ज्यादा करना है, डिपेंड करता है। हर बार आपको करेक्ट एक्सपोजर पे ही शूट करना है ऐसा कंपलसरी नहीं है। लाइक अभी जैसे इस सिचुएशन में मुझे थोड़ा और ड्रामेटिकल इफेक्ट चाहिए तो मैं और 1-2 स्टॉप कम कर दूंगा एक्सपोजर, तो मुझे और ज्यादा डार्कर इमेज मिलेगा। तो हमारा टोटली डिसीजन आपका होता है कि आपको जो उसमें क्लिक करना है, जो फाइनल लोगों को शो करना है वो किस तरीके से। लाइक यहाँ पर भी ये इमेज जब शूट किया गया था, अभी ये जो एप्पल का बैकग्राउंड जो है इसमें भी लो शटर स्पीड यूज किया है, जिसकी वजह से मेरा पानी में पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगेन ये क्लाउड्स वगैरह है और एक्सपोजर थोड़ा सा 2 पॉइंट कम किया है, 2-3 पॉइंट कम किया है। बिकॉज ऑफ दैट मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये जो एरिया है जहाँ पर मेरे शैडोज बहुत ज्यादा है, तो मैं प्रॉपरली शैडो को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको प्रॉपर करेक्ट एक्सपोजर में शूट करता तो वहां पर क्या है कि मुझे शैडो कम शो करती। तो डिपेंड करता है कि मुझे किस तरीके से फाइनल इमेज लोगों को पहुंचाना है। अभी आप एक काम कीजिए, जो आपका कैमरा है उसका मीटरिंग जो पॉइंट है वो कहाँ पर सेट किया है, मैट्रिक्स पे सेट किया है या फिर अभी आपका स्पॉट या सेंटर वेटेड पे है? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में, राइट। तो अभी आपके जो बैक साइड वॉल है ना सर, जहाँ पर आपका विंडो है, तो बाजू में कुछ ऐसा यहाँ पर लास्ट उस आपका लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में, तो वहां से आपका अभी लाइट आ रहा है ना, तो वो इमेज को कैप्चर कीजिए ऑपोजिट साइड में सर, बैक साइड में। वो जो हाँ जहाँ से विंडो लाइट आ रहा है ना, तो विंडो लाइट और आपका जो अंदर पीछे का कुछ शॉकेस टाइप दिखाई दे रहा है जहाँ पर ना अलग अलग 4-5 रखे हैं कॉलम्स, तो वो एरिया कैप्चर कीजिए और वहां पर एक्सपोजर देखिए कि कैमरा कैसे आपको एक्सपोजर शो कर रहा है। तो इसमें अभी 2 कॉन्ट्रास्ट इमेजेस है आपकी। एक तो इंडोर लाइट है जहाँ पर लाइट कम है, जो विंडो के बाजू वाली जो दीवार है। डायल किस में रखना है? डायल आप मैनुअल में रख दीजिए, आपका जो हाँ मैनुअल में रख दीजिए। और आपका आईएसओ जो है, आईएसओ आप 100-200 के आसपास रख दीजिए या फिर 400 रखोगे तो भी चलेगा।
अब अभी आपने लेंस जो लगाया है वो लेंस आपका छोटा लेंस है 1855 राइट? 55 हाँ, तो अपर्चर लेवल आप 250 में 250 55 250 लेंस लगाया आपने अभी कैमरा को। हाँ ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें आपका अपर्चर जो है अभी आप 5.6 या फिर 7 के आसपास रख सकते हो, या फिर कम कर दीजिए, f4 तक कर दीजिए, क्योंकि आप 50 शूट करोगे ना। अभी जूम नहीं करना है आपको, 55 mm पे ही शूट करना है, तो आपका एरिया जो आप कैप्चर कर पाओगे। और 4 है, हाँ, F4 है, f4 पे अभी वो इमेज देखिए व्यू फाइंडर से, बैकग्राउंड में आपको एक्सपोजर बहुत कम शो कर रहा है या ज्यादा शो कर रहा है? एक्सपोजर थोड़ा कम है। हाँ, तो एक्सपोजर जब आप शटर रिलीज का जब बटन प्रेस कर रहे हो तो आपको एक्सपोजर अंडर शो कर रहा है, अंडर एक्सपोज दिखा रहा है इमेज, राइट? एक्सपोजर मीटर में आपको अंडर एक्सपोज बता रहा है। एक्सपोजर मीटर में राइट साइड में चले गया, पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है ना, मतलब आपका यहाँ पर अंडर एक्सपोज है। अभी आपका शटर स्पीड कितना है? शटर स्पीड कैमरा का 1 मिनट जी, शटर स्पीड 160 है। 160 है, ओके। अभी कैसे आप शटर स्पीड 160 से नीचे अगर गए तो आपका थोड़ा इमेज चेक होने के चांसेस है। अभी इसमें आपका जो f4 आपने अपर्चर लिया है, f4 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि f4 आपका 55 mm पर है। तो इसमें अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ISO जो है ISO इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ISO अभी आपका 400 था, उसको आप एक काम कीजिए 800 कीजिए। ISO 800 किया। अभी हम लोग जब इंडोर में सीखा था हमने कि अगर मैं इंडोर में शूट कर रहा हूँ तो मैं ISO 800 तक जा सकता हूँ, तो मुझे इतना इमेज ब्लर नहीं शो करेगा। अभी सेम आप ट्राई करके देखिए आपका एक्सपोजर क्या शो करता है। फिर भी अंडर एक्सपोज है, राइट, बिकॉज कैसे हो रहा है कि वहां पे अंडर एक्सपोज है ना, लेकिन कितना पॉइंट अंडर एक्सपोज है सर? 1 2 कितने पॉइंट अंडर एक्सपोज है? वो पूरा राइट तक चले गया, एंड तक चले गया, पूरा एंड तक चला गया। ओके, आप फ्रेम जो कैप्चर कर रहे हो उसमें दीवार और बाकी बाजू की विंडो वो आ रही है ना? जो विंडो है ना आपकी, विंडो भी नहीं आ रहा है, विंडो भी कैप्चर करना है। आधा विंडो होना चाहिए फ्रेम में और आधा एरिया। हाँ, ये 55 mm है ना, इसकी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा जूम करके दिखा रहा है। अगर सेम आप 18 mm वाला लेंस लगाओगे ना, 18-55 वाला, तो वो आपको प्रॉपर वो एरिया कैप्चर करने के लिए शो करेगा। आपका फ्रेम में आधा जो है आपका विंडो आना चाहिए और आधा आपका अंडर एक्सपोज जो दीवार के बाजू में जो भी शोकेस वगैरह है वो एरिया आपको कैप्चर करना है। अभी थोड़ा कम हो गया, राइट? हाँ, मतलब अभी 0 के आसपास शो कर रहा है, 1-2 के आसपास। नहीं, 0 सेंटर, राइट साइड में सेंटर में है, सेंटर में 0 में है, अंडर एक्सपोज में सेंटर है, अंडर एक्सपोज में सेंटर है। ओके, इमेज क्लिक कीजिए अभी। राइट, इमेज थोड़ा सा डार्कर आया होगा आपका, राइट? अभी थोड़ा डार्कर है, अंडर एक्सपोज शो कर रहा है, अंडर एक्सपोज हो थोड़ा डार्क है। हाँ, अभी देख, इतना डार्क नहीं है, राइट, जो पहले शो कर रहा था इतना डार्क नहीं है, बट ऑब्जेक्ट तो क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं आ रहा है आपका। विंडो साइड थोड़ा ब्राइट लग रहा है, ओके, मगर ऑब्जेक्ट वो कॉर्नर है ना उसमें डल है, अंडर एक्सपोज है, अंडर एक्सपोज है। फोकसिंग का आई थिंक आपका कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है सर, आपका इमेज ना फोकस नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली। आप जब प्रेस करते हो तो पहले पूरा प्रेस करते हो या हाफ प्रेस करते हो? हाफ प्रेस करके पूरा करता हूं। तो जब हाफ प्रेस करते हो तो बीप साउंड आपको सुनाई देता है आपका? यस। ओके, तो वो फोकस, मतलब आपका जो कैमरा है ना, कैमरा प्रॉपर फोकसिंग आपका कर रहा है, लेकिन इमेज क्यों ब्लर आ रहा है वो पहले थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें। अभी एक काम कीजिए, फिर से एक इमेज क्लिक कीजिए, फोकस जो है आपका प्रो फोकस ना, वो जो शॉकेश है आपका उस पर क्लिक कीजिए, या फिर जो विंडो के ऊपर के साइड कुछ पर्दा वगैरह दिखाई दे रहा है तो उसको क्लिक कीजिए। कुछ भी एक टाइप के ऊपर फोकस आपका प्रॉपर लॉक कीजिए और फिर इमेज क्लिक कीजिए। किया। ओके, अभी इमेज कैसे शो कर रहा है आपका? वो तो सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया, राइट? अभी कर्टन आया, हाँ, ओके, ऊपर है, विंडो के ऊपर है, राइट, बट ऑब्जेक्ट तो डार्क है इसलिए ऊपर है ना। हाँ, तो अभी बट विंडो तो ब्राइट है, विंडो ब्राइट भी सेंटर में आ गया। ओके, तो
अभी आप एक काम कीजिए, जो आपका मीटरिंग मोड है ना, जो अभी मैट्रिक्स पे है, उसको चेंज करके आप अभी सेंटर वेटेड पे लेकर जाइए। ठीक है। अभी आप जब अभी चेंज थोड़ा करोगे ना उसको, स्पॉट अपना ये जो वेटेड एवरेज मीटरिंग है ना, सेंटर वेटेड, वो जो आप 8 mm, 6 mm, 10 mm ऐसा लिखा है। सेंटर वेटेड हाँ एरिया जी 8 mm, ऊपर राइट। 6 mm डाया, नीचे 10 mm। हाँ, तो मतलब कैसे वो जो सेंटर का एरिया है वो उतना एरिया कैप्चर करेगा फ्रेम का। अभी सेम ओके, जो आपने पहले फ्रेम कैप्चर किया ना, जो पहले आपने फ्रेम ठीक है। कैप्चर किया, सेम वही एरिया आपको कैप्चर करना है। अभी ISO कितना रखना है? वही 800। सेम सेटिंग आपकी सेम रहेगी, हमें सिर्फ ओके। डिफरेंस चेंज करना है कि एक्सपोजर मीटर आपको किस तरीके से अलग इंडिकेशन बताएगा इस सिचुएशन में। अभी भी सेंटर में है, अंडर एक्सपोज्ड है। अंडर एक्सपोज। अभी ये क्यों हुआ सर? क्योंकि जब कैमरा ने वो जो फ्रेम आपने मुझे बोला ना कि 8 mm बाद में 6 mm, तो जो एरिया कैमरा ने एक्सपोजर का ट्राई किया ना, तो वहां पर ज्यादा करके आपका जो विंडो है वो विंडो सेंटर में आया होगा। तो आपका जो पिक्चर है, पिक्चर के सेंटर में क्या है, विंडो है या फिर वो जो बाजू वाला ना शॉकेश है वो है? वो एज में है, ये राइट साइड एज। एज में है, राइट। तो आपका जो पिक्चर है, पिक्चर के सेंटर में लाइट ज्यादा है, बराबर, आपका जो विंडो कैप्चर कर रहा है। तो इसकी वजह से अभी कैमरा ने आपको जो एक्सपोजर शो कर रहा है वो सेंटर वाला एरिया जहां पर ऑलरेडी लाइट ज्यादा है उसके हिसाब से शो कर रहा है। लेकिन बाजू का जो आपका इमेज है, जहां पर वो दीवार के बाजू में एज वगैरह है, तो वहां पर वो आपका अंडर एक्सपोज हो जाएगा, बिकॉज वहां पे लाइट है ही नहीं। तो ये आपका सेम सिचुएशन में अगर मैं मीटरिंग मोड चेंज कर देता हूँ, तो मेरा इफेक्ट किस तरीके से होता है मेरे फाइनल इमेज के ऊपर, वो हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, आपने जो सेंटर वेटेड रखा था, तो सेंटर वेटेड में सिर्फ सेंटर का एरिया कैमरा ने एनालाइज किया। अभी सेम सेटिंग आपकी रहेंगी। आप जो है सेंटर वेटेड को मूव करके आप आपका स्पॉट पे क्लिक करिए, स्पॉट मीटरिंग के ऊपर। ठीक है। फाइन ट्यून ऑटो सेंटर वेटेड राइट। ऑटो स्पॉट तो इधर नहीं दिख रहा है मेरे को। फाइन ट्यून जो आपने शो किया है वाला, फाइन ट्यून एक्सपोजर, हाँ वो निकालने का है। अभी आ गया, स्पॉट आ गया। राइट। तो अभी आप स्पॉट जो क्लिक करोगे ना, तो एक काम करना, स्पॉट जो है आपका वो कर्टन को आप लीजिए, विथ जो आपका सेम फ्रेम रहेगा, लेकिन स्पॉट आपको करना है कर्टन के ऊपर। वो आपका जो मोड डायल है उससे आप स्पॉट चेंज कर पाओगे। जैसे आप हाफ प्रेस करोगे ना, तो आपको वो शो करेगा, अंदर बीप करके सुनाई देगा साउंड, और आपका जो रेड कलर का स्पॉट है, तो स्पॉट आपको शो करेगा कि कहाँ पर है। तो आपका जो मोड डायल है वो तो कर्टन के ऊपर है। हाँ, तो कर्टन आप जब अभी क्लिक करोगे ना, तो कैमरा सिर्फ कर्टन को ही आइडेंटिफाइड करेगा कि कर्टन से कितना राइट मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर आपको एक्सपोजर शो करेगा कि कम है या फिर ज्यादा है। अभी 2 पॉइंट अंडर एक्सपोज है। 2 पॉइंट अंडर एक्सपोज है, एग्जैक्टली, क्योंकि कर्टन के ऊपर लाइट इतना डायरेक्टली नहीं है। अभी आप एक काम कीजिए, जो स्पॉट है ना वो स्पॉट विंडो के ऊपर लेकर आइए, जहां से डायरेक्ट लाइट आ रहा है ना, स्पॉट विंडो के ऊपर लेकर आइए। ओके। अभी वो रेड लाइट नहीं आ रहा है। विंडो के ऊपर आने क्लिकनेस बहुत लाइट आ गए ना। हाँ नहीं, अभी कैसे हुआ, जो विंडो का एरिया है ना, तो विंडो के एरिया के ऊपर डायरेक्टली कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा, बिकॉज पूरा फ्रेम जो है वो ब्लैंक फ्रेम है। तो वहां पर आपको मैनुअली ना कोई ऑटो फोकस में कोई तो फोकस आपको लॉक करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा एरिया जो है विंडो का लीजिए, थोड़ा एरिया आपकी दीवार का, वैसा फ्रेम डिसाइड कीजिए, और जो फोकस है आपका वो फोकस ग्रिल वगैरह वहां पे कुछ रहेंगे तो उस पर ट्राई कीजिए। विंडो पर ट्राई कीजिए लॉक करने का। जी, विंडो के जो ग्रिल है ना उसके ऊपर फोकस ट्राई कीजिए लॉक करने का, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वो तो अभी सेंटर में है। अभी सेंटर में है फोकस आपका। तो इस इमेज में अभी आपको ओवर एक्सपोज शो, मीटर सेंटर में है। मीटर, आपका जो मीटरिंग स्पॉट बोल रहे हो वो सेंटर में है ना सर? ओके, तो उसको अपना चेंज कर पाओगे, अलग अलग जगह पे चेंज करके इमेज क्लिक कीजिए। जैसे अपने एकदम राइट में कर दोगे, एकदम लेफ्ट में कर दोगे, तो वो ना आपका जो मोड डायल है उसको यूज करके उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। इफ आई मूव द फोकस टुवर्ड्स द विंडो, my meter is
coming close to the center. Exactly. If I move away from the light, it is showing underexposed. अंडर एक्सपोज। ये अभी हमने जो पहले समझा उसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने ट्राई किया एनालाइज करने का। I understand now little bit. होता है सर। You know, as such, we have got the light. We have used the shutter speed to control whatever light we want. Now we are now looking at the meter to make sure that is evenly done. You know, the light exposure is even. Till now, we know just amount of light we are controlling through the shutter speed and all. We are not exactly whole picture or the object is evenly lit. Now we are looking at how each of the picture we want to take, how it is lit. Now we want to make sure that it is either camera will do by matrix metering, it will take the average and suggest you, okay, or the center when the object you want to take, you can then maybe crop it off because you don't require the rest of the portion, then you can go to the center with it. But if you see some spot, some problems are there, then you take that spot for the focus so that it or the main object or whatever it is, then the whole lighting is worked out by the camera based on the spot you are showing it. Right. So this is what I understood. Exactly. So the entire decision of the camera will be dependent only on the spot which we have decided. तो वो आपका स्पॉट को ही आइडेंटिफाई करेगा। सेंटर वेटेड में सिर्फ सेंटर का जो एरिया है उसको और बाकी का जो बचा हुआ एरिया है उसमें वेटेड एवरेज निकालेगा। और जो इवैल्यूएटिव जिसको मैट्रिक्स मीटरिंग कहते हैं, जिसको जोन मीटरिंग कहते हैं, अलग अलग कैमरा में अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे आपके निकॉन में उसको मैट्रिक्स मीटरिंग कहा जाता है, कैनन में इवैल्यूएटिव मीटरिंग ऑप्शन है। नाम अलग है लेकिन जो उसका वर्क है वो सेम ही है। अभी आज का आपका होमवर्क क्या है सर कि आपको सेम कोई ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे वो अपने जो बुद्ध थे उनका कोई स्टैचू लिया था, और बैकग्राउंड जो है आपका बैकग्राउंड जैसे विंडो अभी है, राइट? तो ये विंडो या फिर कोई भी लाइट सिचुएशन जहाँ पर लाइट आपकी आ रही है परफेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर उसको अलग अलग मीटरिंग के मोड के साथ शूट करना है। तो हर एक मीटरिंग के दो इमेजेस आपको क्लिक करने हैं, 2 3, ठीक है? ये आपका हो गया। So I had to shift the Buddha from the wall side onto the window side. हाँ, कोई भी ना ऑब्जेक्ट, बुद्ध का जो ऑब्जेक्ट सेम इट इज हियर ओनली इन द रूम, राइट? तो वो आपका एक आज हो जाएगा मीटरिंग के जो अलग अलग ऑप्शन है। बट इन द बैकग्राउंड लॉट ऑफ लाइट विल बी देयर, नो, राइट? दैट इज द रीजन हम लोग ना वो बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, ताकि जब आप इवैल्यूएटिव पे होगे तो वो आपको जो मीटरिंग मोड है वो शो करेगा कि आपका बुद्ध जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपोजर में आए। सेंटर वेटेड में क्या हो जाएगा, सेंटर वेटेड में बुद्ध का इमेज आपको ओवर, मतलब बुद्ध का इमेज प्रॉपर्ली शो करेगा, लेकिन बाकी एरिया ओवर एक्सपोज हो जाएगा। जब आप स्पॉट शूट करोगे तो स्पॉट आपको कहाँ पर शूट करना है, पहले बुद्ध के ऊपर स्पॉट रखना है, तो आपका सिर्फ बुद्ध जो है वो एक्सपोजर में आएगा। बाद में आप स्पॉट आपका इसको मूव करके विंडो की तरफ लेकर जाइए, तो आपका जो इमेज है वो बुद्ध का पूरा अंडर लाइट हो जाएगा। अभी मैंने आपको विंडो इसके लिए बताया बिकॉज जहाँ पर आपकी सिचुएशन है वहाँ पर इंडोर लाइटिंग जो है वो इंडोर लाइटिंग में आपका आईएसओ इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो लेंस है वो लेंस f4 तक ही एक्सेप्ट कर रहा है, उसके नीचे आपका अपर्चर नहीं जा पाएगा। तो वो लेंस 4 की वजह से हम लोग ज्यादा लाइट एंटर तो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बट टुडे आई एम गेटिंग ए लेंस फ्रॉम 8 to 105. My son said Nikon had given one more lens. It came with the camera 8 to 105 or something like that, which is giving me now. Okay, 18 I can use that. Right, 105 mm का जो लेंस होता है वो भी एक वर्सेटाइल लेंस है, जो आपका प्राइम लेंस की तरह भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप जब ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आप उसको जूम लेंस की तरह भी यूज कर सकते हो। तो दैट इज अगेन अ वर्सेटाइल लेंस, लाइक योर 50x250 is not that much flexible, but 18-105 और 24-105, अभी अगर फुल फ्रेम कैमरा होता है तो आपका 24-105 आपको लेंस मिलता है। Then again these are we can say like a versatile lens. Then 18-135 mm जो लेंस है वो भी आपका एक अलग वर्सेटाइल लेंस कहा जाता है, क्योंकि वो उससे में अलग अलग सब्जेक्ट एट अ टाइम शूट कर सकता है।
तो आज का आपको होमवर्क पता चला, समझा सर कि आपको क्या करना है होमवर्क में? यस। ठीक है, तो आज का जो मीटरिंग का हमारा टॉपिक है हमने वो अंडरस्टैंड किया। इसमें और कुछ आपको डाउट है, और कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसको हमें और रिवाइज करना चाहिए, या फिर थोड़ा डीपली हम लोग एक्सप्लेन करें मीटरिंग? राइट नाउ इज ओके, टुडे आई विल ट्राई। Sure. Still I have to learn lot.